So welcome to Excel Learning, a perfect platform for learning English, and I am your English teacher Abhishek Saw. Today we are going to discuss a poem that represents our country, our culture, our traditions, our customs. Yes, you are right. The name of the poem is Indian Weavers, written by Sarojini Naidu. So you are excited? No? Yes. So please take the book and take a pencil so that you can note down all the points that I am going to tell you, because these points are going to be very helpful for you all. Now, without wasting any more time, let's get into the discussion. Indian Weavers, this poem has been divided into 3 stanzas, and the most important thing is that all the 3 stanzas are describing 3 important phases of our life. How to know? We need to read out the poem. We need to understand the meaning of each and every line. Okay, so see, let's begin with the first stanza. Weavers weaving at break of day, why do you weave a garment so gay? So the poet is asking questions to the Indian weavers, that weavers, you are weaving at the break of the day. That means you are working in the morning. Right now it is a morning time, and why do you weave a garment so gay, and why are you weaving this kind of colorful cloth right now? Okay, blue as the wing of a halcyon whale. Halcyon is a mythical bird, and actually the cloths the weavers are weaving, this is so bright. This is the color of the cloth is as bright as the wing of a halcyon bird. Okay, we weave the robes of a newborn child. अब वो लोग ये रिप्लाई कर रहा है कि हम लोग ये कपड़ा एक न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए बना रहे हैं. तो फर्स्ट स्टैंजा में हम लोग को क्या मिला कि पोएट जो है वो पोएट पूछ रही है किससे? वीवर से, कि आप लोग इस मॉर्निंग टाइम में क्या बना रहे हो, कौन सा कपड़ा आप लोग बना रहे हो और क्यों बना रहे हो, और ये जो कपड़ा आप लोग बना रहे हो, जो क्लॉथ आप लोग मतलब तैयार कर रही हो, ये बहुत ही ब्राइट कलर कपड़ा है. तो इतना ब्राइट कलर कपड़ा आप लोग किसके लिए बना रहे हो? तो वीवर जो है वो लोग रिप्लाई कर रहा है, हम लोग ये बना रहे न्यू बॉर्न बेबी के लिए. क्लियर फर्स्ट आंसर? नाउ अब मार्क करते रहो. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक ऑफ डे सिंबलाइजेस बर्थ एंड हैप्पीनेस. Break of day, morning time is new day, new hope, new opportunity, and birth and happiness. Okay, and this is imagery. Weavers weaving at break of day, this is imagery. Now coming to the next one, blue as the wing of a halcyon wild. So ये एक simile है, यहाँ पे literary device जो है वो simile use किया गया है. और newborn child, definitely it is associated with new birth, new hope, न्यू हैप्पीनेस. होता है ना कि हम लोग के घर में कोई छोटा सा बच्चा आए तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, हम लोग खेलते हैं. तो सिमिलरली ऑल द वीवर्स आर वेरी हैप्पी व्हाइल दे आर वीविंग क्लॉथ्स फॉर द न्यूबॉर्न चाइल्ड. एंड एज इट इज अ न्यूबॉर्न चाइल्ड, अ लाइफ बिगिंस. अभी शुरू हो रहा है उनका लाइफ, उनका जीवन. ओके, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एक लाइन है रॉबर्ट फर्स्ट का लिखा हुआ. तो अभी ये जो बच्चा जो अभी जन्म लिया है, इनको भी बहुत बहुत दूर तक जाना है, बहुत कुछ फेस करना है, लाइफ को फेस करना है, लाइफ का जो एडवेंचर है उसको फेस करना है. एंड ऑल द पीपल आर वेरी हैप्पी, इंक्लूडिंग द वीवर्स एंड द poet. That is the reason the weavers are weaving so bright colored cloth for the newborn child. So the first stanza actually represents the first phase of our life, that is birth. Okay, so birth यहाँ पे एक पहला थीम जो है इस पोएम का आ गया. Now coming to the second stanza, weavers weaving at fall of night. कि अभी fall of night है, यानी कि अभी जो है रात शुरू हो रहा है, मतलब अभी इवनिंग का टाइम है. Why do you weave a garment so bright? So in the morning the weavers were weaving bright colored cloths, and in the evening also all the weavers are weaving bright colored cloths. अब अभी इवनिंग में जो क्लॉथ है वो कैसा है? Like the plumes of a peacock. आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा होगा, पर्पल एंड ग्रीन. ओके, सो अभी इवनिंग के टाइम जो कपड़ा वो लोग बना रहे हैं, जो क्लॉथ वो लोग बना रहे हैं, वो कितना ब्राइट है, वो दिखने में कैसा है? एक पीकॉक का जो प्लूम है जो आप लोगों को फोटो में दिख रहा है, ऐसा ब्राइट कपड़ा वो लोग बना रहे हैं. कब? शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम. वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन. सो व्हाट डिड द वीवर्स रिप्लाई? द वीवर्स रिप्लाइड दैट दे वर एक्चुअली मेकिंग अ मैरिज वेल्स
ऑफ अ क्वीन, यानी कि एक रानी का शादी है, एक क्वीन का शादी है, तो उनके लिए वो मैरिज वेल बना रहा है। तो देखो हम लोगों के इंडियन कल्चर में बेसिकली ये होता है कि कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो इवनिंग के टाइम होता है ना कि आप लोग किसी का बर्थडे पार्टी में आप लोग गए हो तो इवनिंग के टाइम ही हम लोग जाते हैं, मतलब इनवाइटेड होते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है मतलब कि सुबह में या फिर दोपहर में नहीं होता है, लेकिन बेसिकली मैक्सिमम जो होता है वो इवनिंग के टाइम ही होता है। किसी का शादी इवनिंग के टाइम, दोस्तों के साथ पार्टी इवनिंग के टाइम, घर में मान लो कि मौसी आई है, मौसी लोग मामा लोग ये सब आए, आप सब लोग भाई बहन मिलके कहीं घूमने गए, कहीं चले कब एक कैफे में जाते चलते हैं, कुछ खाते हैं, तो थोड़ा गुपचुप खा के आते हैं, तो रोल खा के चल यार मोमोज खा के आते हैं। तो वो बेसिकली हम लोग का हम लोग कब जाते हैं, इवनिंग के टाइम जाते हैं। सो समहाउ इवनिंग इज द सेलिब्रेशन ऑफ आवर life. That is the reason the weavers are weaving a marriage veils for a queen in the evening time, and fall of night symbolizes celebration of life. Okay, and in this stanza also the third line is a simile. You need to mark it. The third line, in the third line, simile. This particular literary device has been used, and marriage veils actually represents youth, that youth is the period of love and marriage. ये भी बहुत important point है, आप लोग लिख लो। तो सेकेंड स्टैंजा आई होप क्लियर है। नाउ कमिंग टू द फाइनल स्टैंजा, सी वीवर्स वीविंग सोलेम एंड स्टील। सोलेम एंड स्टील बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कीवर्ड है, आपको मार्क करना होगा, और इट शोज द चेंज ऑफ एटीट्यूड ऑफ द वीवर्स। सी इन द मॉर्निंग व्हेन द वीवर्स वर वीविंग दे आर वेरी हैप्पी, इन द इवनिंग व्हेन दे वर वीविंग दे वर वेरी हैप्पी। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज व्हेन दे आर वीविंग द क्लॉथ इन द नाइट, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम देयर मूड इज नॉट ओके, दे आर वेरी सोलेम, दे आर वेरी स्टील। इट शोज, इट इंडिकेट्स द चेंज इन एटीट्यूड। व्हाट डू यू वीव इन द मूनलिट चिल? आप लोग अब ये रात के समय में आप लोग क्या बना रहे हो? व्हाइट एज अ फेदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड। दैट मीन्स राइट नाउ द पोएट हैज paid her attention that right now all the weavers are weaving the cloths which is white in color and which is as light as feather। feather जैसा लाइट होता है कपड़ा भी उतना ही लाइट है, और white जैसा क्लाउड होता है, सॉरी क्लाउड जैसा व्हाइट होता है, तो ये कपड़ा भी व्हाइट है। सो ऑल द वीवर्स आर रिप्लाइंग दैट वी वीव अ डेड मैन्स फनेरल श्राउड, कि वो लोग ये बता रहे हैं कि हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग एक डेड मैन का फनेरल श्राउड बना रही है, यानी कि डेड बॉडी के ऊपर एक कपड़ा, एक व्हाइट कलर का कपड़ा चढ़ाया जाता है, हम लोग वो बना रहे हैं। सो एज दे आर weaving dead man's funeral shroud, that is the reason all the weavers are very sad at this particular point of time, while on the other hand, while they were weaving for the newborn child and for the queen's marriage, they were very happy, because these are the happy phases of our life. Death, definitely death associates with sadness, है कि नहीं? तो यहाँ पे जो है सोलेम स्टील इसीलिए वो लोग है क्योंकि वो लोग एक फनेरल श्राउड बना रहे, और मूनलिट चिल सिंबलाइजेस डिफिकल्टीज ऑफ ओल्ड एज। और एक ये जो है यहाँ पे फेदर और क्लाउड, ये दो वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया गया है? फेदर देखो, फेदर बहुत लाइट होता है, फेदर उड़ता रहता है, ये एक बात को दिमाग में रखो। और एक बात क्या है, क्लाउड, क्लाउड भी ऊपर रहता है, व्हाइट रहता है, एंड व्हाइट इज द सिंबल ऑफ पीस। सो व्हेन अ मैन डाइज, the man cannot make any noise, the man cannot talk, that means he is or she is in a peaceful mood right now। and cloud जैसा मतलब हल्का होता है, फेदर जैसा हल्का होता है, similarly the soul goes up। इसीलिए यहाँ पे जब डेड मैन का जब बात किया जा रहा है, तब उसे कंपेयर किया जा रहा है फेदर के साथ और क्लाउड के साथ। Okay, and similarly in the third stanza, the third line is simile। Okay, simile has been used in this particular stanza। और एक बात जो है यहाँ पे सेकेंड स्टैंजा में पर्पल और ग्रीन कलर जो है, इट इज अ मेटाफर फॉर द केयर फ्री एंड ब्राइट पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ विच इज फुल ऑफ
हेल्थ, स्पिरिट एंड विगर। क्योंकि देखो जब हम लोग यंग रहते हैं तब हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं, हम लोग हेल्दी रहते हैं, या हम लोग इधर उछलते हैं, कूदते हैं, सब कुछ करते हैं। सो somehow it represents the carefree and bright period of our life when we are very healthy, when we would love to enjoy each and every moment of our life. Okay, on the other hand, the third stanza is complete contrast to the first and second stanza. In the first and second stanza, we found all the viewers are very happy, as because these are the happy phrases of our life. Newborn child, marriage, birthday party, celebration, हम लोग बहुत खुश होता है। लेकिन जब किसी का डेथ हो जाता है हम लोग खुश नहीं होता है। This is the reason all the viewers are also very solemn and they are very sad. Okay, so this is the complete एक्सप्लेनेशन। सो आप लोग को समझ में आ गया कि यहाँ का थीम क्या है, बर्थ और हैप्पीनेस, ये एक थीम रहा। अच्छा, यूथ, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, ये एक थीम रहा। और डेथ या फिर एंड ऑफ लाइफ, ये भी एक थीम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है। और ये बहुत अभी आई होप आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो गया कि कैसे 3 स्टैंजा के द्वारा पोएट जो है हमारे जीवन के 3 फेजेस को, इंपॉर्टेंट फेजेस को डिस्क्राइब किया है। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। आई होप नो प्रॉब्लम इज देयर, बट देन ऑल्सो इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम आप लोग मुझे लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स पे भी आप लोग लिख सकते हो, या फिर मेरा नंबर दिया है, यू कैन इजीली व्हाट्सएप मी, आई विल ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। या फिर अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को कोई चैप्टर में प्रॉब्लम है और मैं वो चैप्टर एक्सप्लेन करूं, सो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, आप उस चैप्टर का एक पीडीएफ बना के उस ईमेल आईडी पे भेज दो और मैं ट्राई करूंगा जितनी जल्दी हो सके मैं वो चैप्टर अपलोड कर दूं। Okay, so please like the video because I know you have liked the video. Share with your friends and don't forget to subscribe to this channel to support us, and with the bell icon, please press the bell icon so that you never miss a single update. आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।